Hello students, I hope you have followed my previous class. These notes I am showing here, it will give you in the description box, and if you haven't followed my previous video, so go follow, check the link in the description box. You will get the link there. Before we start this class, I would like to request you, please do like, share and subscribe our channel. It will help us to grow more. Okay, so without any delay, let's get started. So, as I was telling about the different road classification which was made by first 20-year road plan, that is Nagpur road plan, that is national highway, state highway, major district road, other district road and village road. Okay, this all we were studied in the previous class. Okay, I was writing this only that national highway we will denote it at, we will not, it is in according to Indian Road Congress, they denote it as national highway NH, similarly SH and major district other district road. Okay, so what is the national highway and what is the purpose of this national highway, I mean, frankly speaking, what is the description of this national highway, we will get to know here. Okay, so the national highway is, this is the main highway running through the length and breadth of India. Okay, it runs through the main length and breadth of India and connects to the major ports. Okay, different docks and ports which are majorly influencing the economy or the transporting purpose of this of our India. So the it connects with those major ports and dockyard, uh, and also the foreign highway means this national highway connects to the another highway of different what can I say, um, state, I mean sorry, country. Okay, so उसके बाद आता है जो कैपिटल ऑफ द लार्ज स्टेट। ठीक, तो सो कैपिटल ऑफ द लार्ज स्टेट क्या है कि मतलब कोई स्टेट, बड़ा सा स्टेट, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया जिसका कलकत्ता। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा का रोडकेला, ऐसे टाइप का डिफरेंट लार्ज स्टेट को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, ये नेशनल हाईवे है। उसके बाद आता है कि ये लार्ज इंडस्ट्रियल प्लेसेस को कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे। फिर टूरिस्ट सेंटर including roads required for strategic movement, मतलब if I mean the army of Indian government can use this road act to make their any kind of strategic movement for the sake of the India, they have to, if they have to do, they can use the road for their strategic movement. Okay, so these are the main function of the national highway. It will I mean, this is the introduction of the national highway. Now next is the major district road. Sorry. Now next is the major district road. Sorry. Okay. State highway. What is state highway? The state highway is the arterial road. Now come with this word. Okay. Where is the marker? Now come with this word that is arterial road. What is this arterial road? This is arterial road. What is this arterial road? Arterial road means a road which bear the maximum weighted vehicles. Okay, I mean, एक जो रास्ता होता है, ये स्टेट हाईवे क्या होता है, ये एक मेन आर्टेरियल रोड होता है। मतलब ये रोड के ऊपर से भारी भरकम गाड़ी जो है ये ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ये सब भारी भरकम गाड़ी को ट्रैवल करने के लिए मतलब हेल्प करने के लिए ये टाइप का रोड तैयार किया हुआ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये कनेक्ट करता है अप टू अप विद द नेशनल हाईवे। ये नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, फिर इंपॉर्टेंट सिटीज विद इन अ स्टेट एंड सर्विंग एज अ मेन आर्टरीज ऑफ द ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट रोड। ओके, ठीक है, ये यहाँ पे बहुत इजी सा चीज़ है, समझ में आ जाएगा। और मैं बस जिस्ट करके लिखा हूँ कि जितना तक जरूरी है हम लोगों को उतना तक ही हम जानेंगे। और क्या है कि अगर यहाँ पे आप लोगों का कोई
मतलब स्पेशल इंटरेस्ट होता है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द रिक्वायर्ड नॉलेज। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? दिस इज द इम्पोर्टेंट रोड विद इन अ डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोड होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एरियाज ऑफ द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए ये सब रोड यूज किया जाता है। मतलब कोई चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, उसको मार्केटिंग करने के लिए ये रोड यूज करते हैं। एंड कनेक्टिंग दोस विथ ईच अदर और विथ द मेन हाईवे ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक, और क्या करता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड? ये रोड फिर स्टेट हाईवे से कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब ऐसे टाइप का लिंक होता है ना, कि मान लो कि नेशनल हाईवे है, उसके साथ स्टेट हाईवे कनेक्टेड है, और स्टेट हाईवे के साथ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा स्टेट, मतलब कंट्री का पूरा स्टेट एक के साथ एक कनेक्टेड रहेगा ना, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स वगैरह है। ठीक, ओके, उसके बाद आते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है? कि दिस इज द रोड सर्विंग रूरल एरिया, मतलब रूरल जो ग्रामीण एरिया है वहां पे इसको कनेक्ट करता है। एंड मेकिंग एंड मार्केटिंग एंड प्रोवाइडिंग rural area of production and marketing, providing the connection to the market center, तालुक हेडक्वार्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर एंड अदर मेन रोड्स। ठीक है, तो ये सब जगह से ये कनेक्ट करता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक, अच्छा, उसके बाद आते हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करता है? ये भी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के साथ कनेक्ट होता है। तो फिर से एक रिकैप करते हैं। नेशनल हाईवे उसके साथ कनेक्ट रहता है, स्टेट हाईवे के साथ कनेक्ट रहता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के साथ कनेक्ट रहता है क्या? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं कि विलेज रोड्स। विलेज रोड्स क्या होता है? ये ग्रामीण रास्ता है। ठीक है, तो विलेज रोड्स के साथ दिस रोड कनेक्टिंग विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज विथ ईच अदर टू द नियरेस्ट रोड्स ऑफ हाईवे हायर कैटेगरी। ओके, तो मतलब नेशनल हाईवे, उसके साथ स्टेट हाईवे, फिर उसके साथ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर उसके साथ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और फाइनली विलेज रोड। तो ये सब कनेक्ट होता है एक के साथ एक, तभी तो बनता है एक पूरा कनेक्टिव इंडिया। ठीक, ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं कि मैं पहले क्लास में बता रहा था कि मॉडिफाइड रोड क्लासिफिकेशन, एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास दैट in the third 20th road plan, that is Lucknow road plan. Okay, please keep in remember that the name of the road plans, that is first is Nagpur, Bombay, and final is Lucknow. So in Lucknow road plan they have in classified the road uh, further. ओके, तो इसमें उन लोगों ने क्या किया कि जो रोड वगैरह है वो को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। पहला है प्राइमरी रोड सिस्टम, सेकंड है सेकेंडरी रोड सिस्टम, थर्ड है टर्शियरी रोड सिस्टम। अभी ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जब सेकेंड 20 रोड प्लान में आए थे, तब हम लोग जाने थे कि सेकेंड हाईवे रोड प्लान मतलब बॉम्बे रोड प्लान में वो लोग टारगेट लिए थे कि 16,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे हम लोगों को बनाना है। कितना? 16,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे उन लोगों को बनाना है। तो अभी ये एक्सप्रेसवे तो आ गया, मैं बता रहा था ना कि एक्सप्रेसवे और एक टाइप का रोड हो गया जो नेशनल हाईवे के से भी कुछ अच्छे टाइप का रोड होता है। ठीक है, मतलब वो जस्ट मतलब कुछ स्मॉल एरिया के लिए होता है, स्मॉल लेंथ के लिए होता है, पर वो नेशनल हाईवे से भी अच्छा होता है, उसको मेंटेन अच्छा होता है, उसके उससे भी ज़्यादा होता है। तो एक्सप्रेस वे इंट्रोड्यूस हुआ, तो जैसे कि एक्सप्रेस वे इंट्रोड्यूस हुआ तो हम लोग का जो पिछले वाला मतलब रोड प्लानिंग सिस्टम था, मतलब नागपुर रोड प्लानिंग सिस्टम, तो उसके ऊपर मॉडिफिकेशन हो गया ना एक्सप्रेस वे आने से। तो इसीलिए थर्ड 20 रोड प्लान जो कि हमारा लखनऊ रोड प्लान है, यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस वे को लेकर रोड क्लासिफिकेशन सिस्टम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया प्राइमरी रोड रोड सिस्टम। सो प्राइमरी रोड सिस्टम उन लोगों ने इंक्लूड किया नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेस वे। सेकेंडरी रोड सिस्टम उन्होंने इंक्लूड किया स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये क्या है? ये भी ओके, स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। फिर आता है कि टर्शियरी रोड सिस्टम, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ठीक,
ये ए बी क्या है? एक सेकंड। ठीक। सो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ओके। अब टर्शियरी रोड सिस्टम, यहाँ पे हम लोग का आता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, और विलेज रोड। तो ये मिलके हो गया तीनों रोड सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड। अब ये अर्बन रोड क्या हो गया? ये अर्बन रोड को के लिए भी थर्ड जो 20 रोड प्लान है वो क्लासिफिकेशन किए थे। आर्टेरियल रोड, जैसे कि मैं बताया, आर्टेरियल रोड वो रोड होता है जो कि भारी भरकम जो गाड़ी है वो कैरी करते हैं, ठीक है। सब आर्टेरियल रोड उससे कम भारी भरकम। फिर कलेक्टर स्ट्रीट, लोकल स्ट्रीट, इन लोगों का स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इन लोगों का स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये जब हम जियोमेट्रिक डिजाइन पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग स्पीड, इन लोग का क्या क्या स्पीड रहता है तो वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, ये पेज काफी इंटरेस्टिंग पेज है। बहुत सारा पिक्चर लगा हुआ है, दिखने में भी लग रहा है कि अच्छा खासा पेज है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं रोड पैटर्न। अभी क्या है कि जो हम लोगों ने 20 साल का तो प्लानिंग प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। अभी प्लानिंग प्रोग्राम बनाने के बाद हम लोग क्या कर किए थे कि रोड को भी क्लासिफाई किए थे। हो गया, फर्स्ट 20 ईयर में भी क्लासिफाई किया और थर्ड 20 ईयर में भी क्लासिफाई किया। अब सब तो हो गया, अभी क्या है, रोड पैटर्न हम लोग को डिजाइन करना है कि कौन सा रोड पैटर्न सबसे इकोनॉमिकल होगा और इफेक्टिव होगा। पूरा जितना भी जगह है हम लोग कनेक्ट करने के लिए वो सब जगह कनेक्ट होगा। तो ये इंडियन रोड कांग्रेस, या मैं बताऊँ तो ये जयकार कमेटी, सेंट्रल रोड फंड और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने सब मिलके और जो फंड आता है सेंट्रल रोड फंड से, ये सब मिला के उन्होंने कि रोड पैटर्न डिजाइन किए। तो रोड पैटर्न में पहले जो आता है ये है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। यहाँ पे मैं दूसरा काली से लिख दिया हूँ कि दिस टाइप ऑफ रोड पैटर्न इज फॉलोड इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में ये टाइप का रोड पैटर्न फॉलो होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये बुकिश एक व्यू है, मतलब 2D व्यू है। ये ओरिजिनल पिक्चर है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये कितना सुंदर दिखता है, ठीक है। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हम लोगों का क्या आ गया, ये बड़ा रास्ता, ठीक है। ये ग्रीनरी मतलब लोकेलिटी है, और इन लोग के साथ कनेक्टेड हुआ एक छोटा सा रास्ता। फिर आ गया एक रास्ता, ये सब कनेक्टेड रास्ता है। ये देखिए कि ब्लॉक पैटर्न टाइप का है, ब्लॉक ब्लॉक एरिया है, ठीक है, ब्लॉक ब्लॉक एरिया है। तो इसीलिए इसका नाम रखा है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। आपको दिखने में पता चल रहा है कि हर एक जो ब्लॉक है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इसीलिए उसका नाम आता है कि रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, ओके। फिर आते हैं रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। तो ये आपका आ गया रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, मतलब ये रेडियल टाइप का ये जो रास्ता गया है, ये एक रेडियल टाइप का रास्ता गया है। और रास्ते के अंदर यहाँ पे जो घर वगैरह है ना, वो देखिए ब्लॉक ब्लॉक टाइप के। मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए, ये रेडियल गया है रास्ता, ये रास्ता गया है रेडियल। और ये रास्ते के अंदर इधर जो घर है, ये देखिए ब्लॉक टाइप का है, रेक्टेंगुलर टाइप का, रेडियल टाइप का नहीं है, रेक्टेंगुलर टाइप का ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक हो गया, फिर ये एक ब्लॉक हो गया, फिर ये एक ब्लॉक हो गया। ये ब्लॉक शेप में है। और यहाँ पे जो मेन रास्ता है वो रास्ता रेडियल में जा गया है, ठीक है, रेडियल में गया है। तो इसको हम बोलते हैं रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। फिर आते हैं तीसरा रोड पैटर्न में, जिसको हम बोलते हैं रेडियल और सर्कुलर रोड पैटर्न, ठीक है। तो नाम से ही पता चलता है कि जो शेप होगा कैसे टाइप का होगा, सर्कुलर टाइप का होगा, ठीक। तो ये जो रोड पैटर्न है ना, ये रोड पैटर्न हम लोग फॉलो किए हैं। दिल्ली का जो कन्नॉट प्लेस है, वो दिल्ली का कन्नॉट प्लेस में ये टाइप का रोड पैटर्न फॉलो किया गया है। मैं जूम करके दिखाता हूँ पिक्चर को, जरा गौर से देखिएगा, देखिए कितना सुंदर दिखने में है। ये एक सिटी मान लीजिए, इस सिटी का ये है मेन रोड। और ये मेन रोड के साथ ये सब्सिडरी रोड है जो कनेक्टेड है छोटा छोटा। और जो घर वगैरह है, ऐसे देख के देखिए कितना सुंदर टाइप का गोल गोल शेप में, सर्कुलर शेप में ये
विस्तृत होकर रखा है। तो ये आ गया आपका रेडियल और सर्कुलर पैटर्न। और एकदम बीच में जो कम्युनिटी हॉल, फिर कोई भी मतलब इंपॉर्टेंट जगह हो, तो ये एकदम बीच सेंटर में है, ठीक है। तो ये रोड पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया। मैं बुकिश वाला वीडियो पिक्चर नहीं डाला हूँ, मैं एकदम रियल पिक्चर डाला हूँ कि दिखने में पता चले कि भाई होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। बुक पढ़ के तो जान जाएगा कोई भी, पर रियल पिक्चर देखने में अलग मजा है। तो ये मैं इसलिए रियल पिक्चर डाला हूँ, ये देखने के लिए कि होता कैसे है रियल पिक्चर में, ठीक। अब इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक। तो ये आपका आ गया रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। और यहाँ ये कहाँ पे फॉलो किया गया है, ये फॉलो किया गया है कनॉट प्लेस में, ठीक। अब आता है कि रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ठीक है। अब इसको भी हम जूम करके दिखाता है ये कैसे दिखने में है। ये क्या है, ये टाइप का जो रोड पैटर्न है, ये टाइप का रोड पैटर्न नागपुर में फॉलो किया गया है। मतलब पहले जो एकदम पहले 21st रोड प्लान था, उसमें जो रोड प्रोग्राम फॉलो किया गया हुआ था, वो रोड प्रोग्राम में ये रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न फॉलो किया गया था, ठीक है। जैसे कि ये पिक्चर देखो, ये जो मतलब रास्ता है, ये एकदम स्टार शेप में है, ठीक है। और ये जो रूम वगैरह है, ये ग्रिड पैटर्न में ऐसे मतलब विस्तृत है, ठीक है। तो जैसे कि दिखने में ये मकड़ी का जाली लग रहा है करीब करीब, पर ये काफी मॉडिफाइड रोड पैटर्न है। हाँ, तो इसको फॉलो किया गया है नागपुर रोड प्लान में। और तो नागपुर का जो रोड टाइप है, ये होता है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न टाइप का रोड पैटर्न, ओके। ठीक। अब आते हैं चौथे रोड पैटर्न, ये चौथा हो गया ना, सॉरी, पांचवें रोड पैटर्न में। पांचवें रोड पैटर्न में हम आ गए हेक्सागोनल पैटर्न। तो हेक्सागोनल पैटर्न में हम पिक्चर देख के ही समझ जा रहे हैं कि हेक्सागोनल पैटर्न दिखने में कैसा है। ये देखिए, मैं बढ़ा करके दिखा रहा हूँ, कितना बाखूबी बनाया हुआ है ये जो रोड, ठीक है। ये मेन, ये एकदम बीच का कम्युनिटी हॉल टाइप का कुछ हो गया, और साइड में ये रोड वगैरह गया है, और ये सब घर ब्लॉक ब्लॉक में है। तो ये हो गया आपका हेक्सागोनल पैटर्न। अगर गौर से देखिएगा तो जो पैटर्न है रास्ते का, वो एकदम हेक्सागोनल शेप में है, ठीक है। ये हो गया आपका हेक्सागोनल रोड पैटर्न, ओके। और फाइनली हमारा आता है मिनिमम ट्रैवल पैटर्न। ये देख सकते हैं कि ये पिक्चर में, अरे ये क्या हुआ, ये पिक्चर में मतलब रास्ता एकदम हैप्पीजर्ट में है। क्यों हैप्पीजर्ट में है, क्योंकि इन लोगों को मिनिमम ट्रैवल डिस्टेंस दिखाना है कि कोई जगह से किसी जगह पे हम लोगों को जाना है, कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा होता है, ऐसे टाइप का मान के चलेगा तो शॉर्ट डिस्टेंस मिल जाता है। तो मतलब ये मिनिमम ट्रैवल डिस्टेंस, मतलब जितना ट्रैवलिंग कम होना पड़े तो वही अच्छा है। तो उसी टाइप का मिनिमम ट्रैवल पैटर्न के लिए ऐसे टाइप का रोड पैटर्न होता है, ठीक। ओके। तो अभी मैं पहले बताया था कि हम लोगों ये नेशनल हाईवे में एक्सप्रेसवे को इंट्रोड्यूस करेंगे, और जब हम करेंगे तो हम डिफरेंस जानेंगे कि नेशनल हाईवे से वो कितना अलग है और किस किस वजह से वो अलग है। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा डिफरेंस लेके आया हूँ, हम लोग ये बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। पेशेंस रखना तो अच्छा समझोगे, ठीक है, बस पेशेंस रखो। So, in national highway and expressway, we are having a bit difference between them. So, let's start with it. क्या है कि डिजाइन स्पीड इज 100 km/h, और एक्सप्रेस में डिजाइन स्पीड 120। ये डिजाइन स्पीड क्या होता है भाई, डिजाइन स्पीड ही है असली चीज। ये डिजाइन स्पीड के ऊपर डिपेंड करके एक रास्ते का जियोमेट्रिक डिजाइन होता है। ये डिजाइन स्पीड ही होता है जिसके लिए जो ट्रैफिक इंजीनियर से इतना माथा पेलते हैं, ठीक है। ये लोग बहुत सारा रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, जो करके बहुत टाइम लगता है, जो करके इन लोगों को पता चलता है ओके, तो इस रास्ते में ये है,
85 परसेंटाइल स्पीड मतलब 85 numbers of car are following, मतलब among 100 cars the 85 numbers of cars are following this speed vehicle, this speed, ओके, 90 परसेंटाइल स्पीड। तो ये सब परसेंटाइल स्पीड होता है, इसमें 90 परसेंटाइल स्पीड जो होता है वही होता है हम लोग का डिजाइन स्पीड। ये हम ट्रैफिक में पढ़ेंगे। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ कि डिजाइन स्पीड के ऊपर डिपेंड करके जो भी होता है, तो डिजाइन वगैरह रास्ते में ट्रैफिक मान लो कि जियोमेट्रिक डिजाइन मान लो, सभी ये डिजाइन स्पीड के ऊपर ही डिपेंड है। अगर डिजाइन स्पीड मिल गया तो धीरे 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 सब निकल जाता है। ठीक है, तुम रास्ते का डेंसिटी बोलो, रास्ते का वॉल्यूम बोलो, रास्ते का कैपेसिटी बोलो, डेंसिटी बोलो, कुछ भी हो, बस डिजाइन स्पीड मिलना होता है। डिजाइन स्पीड मिल गया तो सब धीरे धीरे निकल जाएगा। तो डिजाइन स्पीड नेशनल हाईवे का क्या होता है 100 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस वे जो होता है वो मैं बताया था ना वो काफी अच्छा होता है। तो देखिए एक्सप्रेस वे में डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो गाड़ी चलेगा। तो मतलब रास्ता कितना अच्छा हो गया, रास्ता कितना अच्छा बनाना पड़ता है कि ये टाइप का रोड करने के लिए। ठीक, दूसरा हम आते हैं कि इट इज कनेक्टेड विथ 2 और मोर देन 2 मेजर सिटीज। क्या मतलब ये जो रास्ता है, ये रास्ता 2 और 2 से ज्यादा मेजर सिटी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, पर ये जो एक्सप्रेस वे है इट कनेक्ट पर्टिकुलरली 2 मेजर सिटीज, बस 2 ही करेगा तो बस 2 ही करेगा, 2 ही सिटीज के साथ कनेक्ट करेगा। मतलब एक इंपॉर्टेंट सिटी से ये शुरू हुआ और दूसरा इंपॉर्टेंट सिटी में जाके ये खत्म हो गया, बीच में कोई आना जाना नहीं है। ठीक है, पर ये जो नेशनल हाईवे है ये एक सिटी से शुरू हुआ दूसरे सिटी में कनेक्ट हुआ, इस बीच वो स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, इन लोगों के साथ इन टाइप ऑफ रास्ते के साथ वो डिफरेंट सिटी में कनेक्ट होता गया। ठीक है, फिर आते हैं तीसरा पॉइंट, मिनिमम 2 लेन। ओके, अब लेन क्या है? लेन हम लोग मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन में पढ़ेंगे। बस मैं पहले बता दे रहा हूं कि अगर कोई रास्ते का विड्थ होता है 3.75 मीटर तो वो हो गया 1 लेन। मतलब ये जो मान लो कि मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं, मतलब ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि ये हमारा रास्ता है, ये हमारा रास्ता है और ये रास्ते का विड्थ हो गया 3.75 मीटर। तो ये हो गया एक लेन का रोड। मतलब ये यहाँ पे जो कार जाएगी, तो ये ऐसे जा सकती है, फिर आ भी सकती है, फिर इस तरफ से कोई गाड़ी आ भी सकती है। मतलब ऐसे होता है ना सिंगल लेन 2 वे ट्रैफिक, तो ऐसे टाइप का यहां से जा भी सकते, यहां से आ भी सकती है। ठीक है, तो ये सिंगल लेन रोड हो गया। इसका अगर विथ 3.75 मीटर होता है, 3.75 मीटर होता है विथ, तो ये सिंगल लेन। फिर उसके बाद 7 मीटर और या 7.5 मीटर होता है तो लेन डिफरेंट होता है। तो मतलब ये 2 लेन होता है। 2 लेन मतलब तुम रास्ते में दिखे होगे कि एक रास्ता है और उसके बीच कुछ लाइन है, फिर और एक रास्ता है। ठीक है, तो ये 2 लेन होता है। 2 लेन का जो विड्थ होता है रास्ते का वो 7 मीटर होता है। अगर कर्व नहीं है 7 से ज्यादा होता है, 7.5 मीटर होता है अगर कर्व है। अब ये कर्व क्या है ये हम जियोमेट्रिक डिजाइन में समझेंगे। बस इतना जान लो कि अगर 1 मीटर मतलब 1 लेन का होगा तो वो रास्ते का विड्थ होगा 3.75 मीटर बस। तो 2 लेन होता है तो 2 लेन मतलब 7 मीटर या 7.5 मीटर होगा वो रास्ते का विड्थ। पर भाई साहब ये एक्सप्रेस वे में 6 लेन होगा। ठीक है, मतलब समझ पा रहे हो कि 2 लेन का विड्थ होता है मान लो 7 मीटर, तो 6 लेन मतलब 7 7 14 21 मीटर। 21 मीटर का विड्थ होगा एक एक रास्ते का। 21 मीटर मिनिमम एक एक रास्ते का विड्थ होगा 21 मीटर का, और ये रास्ते का विड्थ होगा बस 7 मीटर का। ठीक है, तो एक्सप्रेस वे कितना बड़ा होता है, मतलब चौड़ा होता है, और उसको कितना बाखूबी से बनाया जाता है। जो काफी अच्छे ग्रेड का मटेरियल यूज करते हैं, वो नेशनल हाईवे के से भी अच्छा मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्रॉसिंग्स। मतलब मान लो कि
चार मुंह वाला क्रॉसिंग है, मतलब ऐसे टाइप का। मान लो कि ये एक रास्ता गया है, और यहां से एक रास्ता आया, तो ये क्या चीज होगी, ये क्या चीज हो गया, ये हो गया इंटरसेक्शन। ये जो रेड डॉट में दिया, ये हो गया इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों रास्ता एक एक पॉइंट में इंटरसेक्ट किए, ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। अब क्या है, इंटरसेक्शन कैन बी प्रोवाइडेड, इंटरसेक्शन नेशनल हाईवे में प्रोवाइड किया जा सकता है, पर इंटरसेक्शन मोस्टली अवॉइडेड, एक्सप्रेसवे में इंटरसेक्शन अवॉइड किया जाता है। देख रहे हो ना भाई की स्पीड कितना है, 120 किलोमीटर पर आवर होता है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन देंगे तो कोई ना कोई एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। इसका भी स्पीड कम नहीं है, फिर भी यहाँ पे इंटरसेक्शन अलाउ किया जा सकता है, पर यहाँ पे इंटरसेक्शन अवॉइड करते हैं। ठीक, ये साफ कर देता हूं। फिर आते हैं, इट इज मोस्टली ऑन ग्राउंड लेवल, मतलब ये ग्राउंड लेवल के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा ये रास्ता होता है। पर ये जो रास्ता है, इट हैज लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ रोड ऑन सेपरेट ग्रेडियंट, मतलब ऐसे टाइप का, मान लो ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल स्ट्रेच है, और ये रास्ता मैक्सिमम रास्ते से ऊपर ऐसे फ्लाईओवर में ही इसका आधा से ज्यादा टाइम बीतर जाता है, मतलब बीत जाता है, ठीक है। तो मतलब रास्ते के ऊपर इसका अलग सा ग्रेडियंट में ये रोड डिजाइन किया जाता है, मतलब मैक्सिमम टाइम ये अलग सा ग्रेडियंट में रहता है। ग्रेडियंट मतलब ये एक मेन रोड है मान लो, और दूसरा एक ओवरब्रिज और फ्लाईओवर है उसके ऊपर है, तो ये फ्लाईओवर क्या हुआ, इस ग्रेडियंट से ऊंचा वाला ग्रेडियंट में फ्लाईओवर हो गया ना, तो ये ऊंचा वाला ग्रेडियंट में हो गया, मतलब सेपरेट ग्रेडियंट में हो गया। तो ऐसे ही एक्सप्रेसवे एक सेपरेट ग्रेडियंट में रहता है, मतलब एक्सप्रेसवे का लॉन्ग स्ट्रेच एक अपर ग्रेडियंट में रहता है, वो ग्राउंड में कनेक्टेड कम होता है, मतलब ग्राउंड लेवल में कनेक्टेड कम होता है, ज्यादा से ज्यादा अपर ग्रेडियंट में, मतलब सेपरेट ग्रेडियंट में उसका होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है, इट कैन बी कनेक्टेड एनी लोअर ग्रेड रोड एट एनी पॉइंट, मतलब नेशनल हाईवे किसी भी पॉइंट से स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या विलेज रोड से कनेक्ट हो सकता है। विलेज रोड नहीं, मतलब पीछे तीनों वाला ये रोड है, तो उसके साथ कनेक्ट हो सकता है किसी भी पॉइंट में। पर भाई ये जो एक्सप्रेस वे है, इट कैन नॉट अलाउ एनी रोड टू एंटर एनी एट एनी पॉइंट, मतलब ये अलाउ नहीं करता है, भाई घुसो मत, ठीक है। ये अलाउ नहीं करता है कोई भी पॉइंट में अंदर आने में, ठीक। अच्छा, फिर आता है सेवेंथ पॉइंट, इट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाहाई, NHAI, नाहाई। ये होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रास्ते वगैरह जो है इसका मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन, ये भाई ये लोग देखते हैं, ठीक है। नाहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, एक एक गवर्निंग बॉडी है जो ये नेशनल हाईवे का मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, ठीक। और ये जो दूसरा है एक्सप्रेस वे, इसमें क्या है, इट इज मेंटेनेंस बाय प्राइवेट बॉडी और सेपरेट गवर्नमेंट कमिटी, मतलब गवर्नमेंट एक एक सेपरेट गवर्नमेंट का कमिटी होता है, उधर ये कॉन्स्ट्रक्ट होता है, उधर ये मेंटेनेंस होता है। या तो क्या होता है कि एक प्राइवेट गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई एक प्राइवेट को दे दिया, तुम बना लो, मेंटेनेंस कर लो, जो भी हो मुझे बस पैसा दे देना, ठीक। ऐसे टाइप का प्राइवेट में भी ये लोग दे देते हैं ये रास्ता बनाने के लिए, ठीक। अच्छा, तो इधर तक हम लोग जो भी पढ़े, मैं आशा करता हूँ अब आप लोग सबको अच्छा लगा होगा, या समझ जाए होंगे। और फिर हम आते हैं अगले पेज में, ठीक। तो अगले पेज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक दूसरा चैप्टर में आ चुके हैं, ठीक। यहाँ तक जो था वो हम लोगों ने सीख लिया, मतलब ये एकदम पहले में बता रहा था ना, एक मिनट, ये एकदम एकदम इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जब डिस्कस किए थे, तो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में क्या था, हिस्ट्री ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये सब था हिस्ट्री, ठीक है। अभी हम आएंगे द डिटेल सर्वे प्लान फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक। सो ये डिटेल सर्वे प्लान जो है वो देखेंगे।
ठीक, अभी आते हैं हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे। ठीक, तो हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग फैक्ट मतलब ये जो हाईवे के अलाइनमेंट होता है ना, ये अलाइनमेंट किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके ये हाईवे अलाइनमेंट तैयार होता है। ठीक है, ये हाईवे अलाइनमेंट तैयार होता है, तो ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब आज हम क्या करेंगे कि अभी जो देखेंगे कि बस ये नाम जानेंगे चीज़ क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सब पॉइंट का डिटेल में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे और क्या हम जानेंगे कि ये जो रेजिस्टिंग लेंथ क्या है। ठीक, फिर हम जानेंगे कि ये हेयर पिन बेंड्स क्या होता है, उसका चीज़ वगैरह क्या होता है। फिर उसके अगले क्लास में हम जानेंगे कि इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन मतलब कैसे एक हाईवे का लोकेशन सिलेक्ट किया जाता है, तो ये सब जानेंगे हम अगले क्लास में। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सबको समझ में आ गया। अगर कोई भी जगह पे आप लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है, कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बताओ मुझे, मैं ज़रूर उस वीडियो में और ज़्यादा डिटेल लाने की कोशिश करूँगा, और तुम लोग को जैसे कि अच्छे से समझ में आए तो ऐसे टाइप का वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो तुम मतलब आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो फॉलो किए कीजिएगा, एंड आशा करता हूँ आप लोग सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आज इधर ही ख़त्म करते हैं। ओके, बस उससे पहले मैं ये जो पेज खुला हुआ हूँ, जो फैक्टर कंट्रोलिंग दैट अलाइनमेंट, ये सब फैक्टर अभी नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग देख भी पा रहे हैं, बस इसका डिटेल में अगले वीडियो में दूंगा। तो क्या है कि ऑब्लिगेटरी पॉइंट, ट्रैफिक, जियोमेट्रिक डिज़ाइन, इकोनॉमिक एंड अदर कंसिडरेशन, ये सब 5 जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट वगैरह के ऊपर डिपेंड करके एक हाईवे का जो अलाइनमेंट होता है वो डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, ये इस बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। थियोरी पार्ट है, मेजरली थियोरी चैप्टर है, तो ये थियोरी चैप्टर हम जानेंगे। और क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर भी ख़त्म करेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, कि कुछ एमसीक्यू मैं खुद करूँगा और कुछ एमसीक्यूज आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, और आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, एंड इट विल हेल्प अस। ओके, थैंक यू वेरी मच।